Hello everyone. In this video, we are going to discuss the syllabus of CUET PG English Entrance Exam. So let's get started. इस एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे. Total number of marks will be 300. You will be getting 4 marks for each correct answer and 1 marks will be deducted for every incorrect answer. The time duration of this question paper is 105 minutes, that is 1 hour and 45 minutes. And here are some instructions given. All questions will be based on subject-specific knowledge. All questions are compulsory. The question paper will be in English. This is the code of your paper. First of all, history of English and Indian literature. ये टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर के लगभग 40% क्वेश्चंस को कवर करता है. इसमें इंग्लिश और इंडियन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट ऑथर्स, टेक्स्ट, नॉवेल्स, पोएम्स, लिटरेरी मूवमेंट सारी चीज़ें आती है. And it has been noticed that sometimes NTA is asking questions from American, African and Australian literature also. But it's not like that कि आपको सारे लिटरेचर को एकदम डेप्थ में जाकर पढ़ना है, लेकिन you must should have the knowledge of authors, text या movements, जिसे कि इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से या इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में. नेक्स्ट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. इसमें वैसे इंडियन राइटर्स आते हैं जिन्होंने अपने वर्क्स को इंग्लिश में लिखा है, जैसे कि मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा. इनकी लाइफ, इनके वर्क्स और अवार्ड्स सारी चीज़ें. टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस. तो इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं और उन सारे डायलेक्ट्स में भी बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं जिसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. फिर है लिटरेरी टर्म्स. यू विल हैव टू रीड ऑल द लिटरेरी टर्म्स विच इज मेंशन्ड ओवर हियर. So first of all, you will go for the meanings and then definition of the literary terms, and then you will go for the important works which is written in this form. For example, elegy. So you must know what is elegy, how it came, who wrote the first elegy, and what are the famous elegies in English literature. या फिर ये elegy किस टाइम पीरियड पे ज़्यादा फेमस थी. नेक्स्ट इज लिटरेरी जॉनरास. इसमें आपको ये सारे जॉनरास जो दिए गए हैं उसे समझना पड़ेगा, देयर टाइप्स एंड देयर डिफरेंसेस ऑल्सो. You should also know that which of the works are science fiction, travelogue or novel or any other kind. Next is comparative literature and translation studies. जब किसी वर्क को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो सेम इमोशंस नहीं रहते, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं. इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे बहुत सारे राइटर्स ने अपनी थ्योरीज दी है, कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी हैं. तो इसके अंदर आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है. Next is literary criticism and theory. In this, we have got the names of few important criticism. In this topic, you should keep in mind, when was the criticism started? Who were the important members? What were the important texts which were written on the basis of this criticism? What was the purpose of this criticism and its background? Next is awareness of current literary trends, events, awards, etc. You should make charts of these Sahitya Academy winners, Nobel Prize winners, Gyanpith Award winners or Booker Prize winners, and paste it wherever you study and read it while entering the room and while leaving the room. What will happen? You will not have to give extra time for these topics and this will save your lots of time. So I suggest you to make charts of such topics which you need to learn. So here we have completed the syllabus and now we will talk about the books which you should go for and a little bit about the paid courses also. Here are the list of few important books which you should go for. फर्स्ट इज द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये बुक ज़रूरी है. नेक्स्ट इज अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. Abrams, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय P.K. नायर एंड कंटेम्पररी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी बाय P.K. नायर. ये सारे बुक्स आपको नेट के प्रिपरेशन में भी काम आएंगे. इसके अलावा आप इंडियन राइटिंग को देखें एंड दिस यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो. फ्यू ऑफ द साइट्स जो कि गूगल पे अवेलेबल हैं आर लिट चार्ट्स, लिटरेरी स्पेयर, स्क्रिप्ड एक्सेट्रा. यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. और इन सब के अलावा आई सजेस्ट यू, एक्चुअली आई से यू टू डेफिनेटली गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ UG इंग्लिश. नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आई पर्सनली फील लाइक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज अ मंत्रा टू क्रैक एनी एग्जाम. अब जैसे कि ये एग्जाम 2022 में स्टार्ट हुई थी, सो वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल विद अस. सो हियर अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी टू गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी PYQs एंड CUCET क्वेश्चन पेपर्स which were conducted by Central University of Rajasthan before 2022.
Now let's talk about the paid courses. Why do we need paid courses? Because it brings all the materials in front of you, which saves your time. क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वो सारी चीज़ें ढूंढकर इकट्ठा करना पड़ेगा एंड देन यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन, जो कि टाइम टेकिंग है. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ कोर्स खरीदने से आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे. जैसा कि ऑलमोस्ट यूट्यूब के हर वीडियो में बताया जाता है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स खरीद कर भी कुछ नहीं स्कोर किया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बेस्ट विदाउट परचेजिंग द कोर्सेस. अब ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट ऑल दोज कोर्सेस और पेड क्लासेस, बट आई एम स्पीकिंग फॉर दोज हु कांट अफोर्ड दोज कोर्सेस, क्योंकि मेहनत तो आपको कोर्स खरीद कर भी करनी है. सो इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि आप बिना कोर्स खरीदे भी तैयारी कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. और वो सारे बुक्स और सोर्सेज जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन सारे सोर्सेज से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी इन दिस चैनल. I wish you all the very best for your preparation.